ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا قوم کے نام خطاب۔ شروع کریں۔ عزیز ہم وطنوں، آج جبکہ پورے ملک میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، وہیں ہماری ریاست بالخصوص وادی کشمیر پچھلے کئی ہفتے سے پریشان کن حالات سے دوچار ہے۔ بہت ہی زیادہ مال و جان کا نقصان ہوا ہے، جس کی تلافی کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ کئی جانیں گئیں، جس میں خاص کر ہمارے نوجوان، بچے، پولیس کے لوگ اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے شہری زخمی ہو گئے، جس میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد، جس میں پولیس کے اہلکار، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار۔ میں آج ان خاندانوں کے جنہوں نے اپنے لال کھوئے یا جن کے بچے زخمی ہو گئے، جن کے جوان زخمی ہو گئے، میرا دل خالی دکھ محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ درد اور تکلیف ہے، کیونکہ میرے لیے یہ بچے، یہ جوان جو کچھ عناصر کے ناجائز ارادوں کے بیٹ چڑھ گئے، یہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ یہ بچے چھنے میں نے خطر اجنبی یس اخبارس مز وچھے انسان تصویر تھوڑی دیر وہویلا کر کے دوسری تصویر دیکھے گا، نہیں، یہ بچے میرے لیے وہ بچے ہیں۔ جب میں کسی گاؤں میں جاتی تھی، یہ بچے اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے محبوبہ مفتی کا نام سن کے اپنے گھروں سے باہر آتے تھے۔ یہ وہ بچے ہیں جو اب جوان ہو گئے تھے، جن بچوں کے لیے میں نے 96 سے لے کے آج تک چوکیداری کی ہے۔ ان کے دل سے خوف، دہشت، چاہے وہ ملیٹنٹ کی بندوق کا خوف ہو، چاہے وہ کریک ڈاؤن کا دہشت ہو، چاہے وہ تلاشیاں ہو، چاہے وہ سفید جپسی کا خوف ہو، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے اور میری جماعت نے دن رات کوشش کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع بخشا 2002 میں اور مفتی محمد سعید صاحب کی کانگریس کے ساتھ مل کر حکومت بنی، دلی میں بی جے پی کی سرکار تھی، تو سب سے پہلا کام ہم نے جیلوں کے دروازے کھول دیے، گیلانی صاحب کو باہر، یاسین ملک صاحب باہر، تمام حریت لیڈروں کو ہم نے کہا ہم ایک جمہوری ملک کا حصہ ہیں، آپ اپنی بات کہیے، ہم اپنی بات کہتے ہیں، آپ اپنے طریقے سے مسئلے کشمیر کا حل ڈھونڈیے، ہم جمہوری نظام کے ذریعے مسئلے کشمیر کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے آتے ہی پوٹا ختم کیا۔ دلی میں بی جے پی کی سرکار تھی، واجپئی جی وزیر اعظم تھے، انہوں نے ہمارے مشکلات کو سمجھا۔ ہم نے کریک ڈاؤن بند کیے۔ جس وقت مفتی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، جو پہلی انہوں نے یونیفائنگ کمانڈ کی میٹنگ کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ ملیٹنٹ کے خلاف لڑ رہے ہو، مگر اس کا خیال رکھو میرے بچے، میرے جوان، میرے بزرگ، میری بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، میری بیٹی کا سر کا دوپٹہ نہیں اڑنا چاہیے، آپ کو انکاؤنٹر کرنا ہے، مگر اس میں دھیان رکھیے اس میں عام شہری نہ مارا جائے، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد
जम्मू कश्मीर में एक नई फिजा चली। जम्मू कश्मीर के हालात में एक खुशगवार तब्दीली आई। इतना ही नहीं, जब उस वक्त के वजीर आजम जम्मू कश्मीर तशरीफ लाए तो उन्होंने यहाँ के ही स्टेडियम से, जो सुनवार में है, उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत ही ज्यादा खराब थे। पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, हमारी फौजें और पाकिस्तान की फौजें एक दूसरे के आमने सामने जंग की तैयारी में थे। मगर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कश्मीर आए और यहाँ हजारों लोगों की तादाद ने उनका इस्तकबाल किया, तो मुफ्ती साहब ने कहा, वाजपेयी जी, ये जो जवान हैं जो आपके सामने हैं, ये कोई पैकेज मांगने नहीं आए हैं। ये कहते हैं हम अमन और इज्जत से अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, जिसके लिए ये जरूरी है कि आप पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें। आप जम्मू कश्मीर में जो अपने लोग हैं उनके साथ बातचीत करें, उनसे पूछे भाई क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। यही वजह है कि उस वक्त में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। उस वक्त में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया बॉर्डर्स पे। इतना ही नहीं, वाजपेयी जी जब दूसरी बार पाकिस्तान चले गए तो वहां के जनरल मुशर्रफ ने कहा कि हम आपस में मिल बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक और पाकिस्तान के लोगों की जज्बात कदर करते हुए हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, ये जनरल मुशर्रफ के अल्फाज हैं, कहा हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम आपस में मिल बैठ के हल निकालेंगे। एक नया दौर चला। मुफ्ती साहब बार बार कहते थे कि यहाँ के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी। 47 से लेके आज तक, जिस वक्त हमारा मुल्क और पाकिस्तान आजाद हो गए, बंटवारा हो गया, मगर हम उस बंटवारे में फंस गए। हमारे यहां गैर यकीनियत का माहौल हमें हमेशा आग और खून के दरिया को पार करके चंद लम्हे चैन के, अमन के जीने को मिलते हैं। क्या वजह है? मुफ्ती साहब कहते थे जमहूरियत में हर चीज का हल है, और वो भी ऐसा जमहूरी मुल्क जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अजीम जमहूरियत की निशानी है, जहां आप खुल के बात कर सकते हो। अगर इसमें हमारा हल नहीं मिलेगा तो दुनिया की कोई बंदूक हमें इंसाफ नहीं दिला सकती। हमने देखा पूरी दुनिया में इस वक्त खासकर हमारे मुसलमान ममालिक में अफरा तफरी मची है। वो तो आजाद मुल्क है, वो किस लिए लड़ रहे हैं? वो जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, वो वहां तानाशाही खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। मगर जब तक उनका एहतजाज पूरा मुल्क था, बात अच्छी थी, दुनिया भी सुनने के लिए तैयार थी। मगर जब उस एहतजाज में बंदूक घुस गई, तशद्दुद घुस गया, ग्रेनेड घुस गया, पेट्रोल बम घुस गया, उसके बाद वहां के हालात, उन मुल्कों के हालात इतने खराब हो गए कि वहां के रहने वाले शहरियों के लिए वहां की जमीन तंग हो गई। तो वुछा सीरियास मज कित कन बच्चे जनान समंदरस मज पीर पीर कि अस दीना कह मुल्क पना, समंदरस मज फटे तम मरान, तत तम काकज खेवान। क्या हालत ये खराब गई, ये अख बंदूक ब्याक तथ बंदूकस मुकाबल करने खतर वारिया बंदूक। इसलिए तो वुछान आज सारी मुल्क परेशान। अत परेशानी मज सारी खुद ज्यादा तकलीफ अस खतर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सोन इस्लाम बदनाम करने। अगर किसी की गर्दन काट दी जाती है तो उसको भी अल्लाह अकबर बोला जाता है।
اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، جموں کشمیر اس پوری دنیا میں ایک ایسا گلدستہ ہے یت مز ہر مذہبک، ہر رنگ، ہر زبان، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے اتنے طوفان میں جب سکول سے بچے سکول نہیں جا پاتے، جب دکانیں بند ہیں، جب کاروبار سارا ٹھپ ہے، تو یہاں وین میں جب ایک کشمیری پنڈت کے گھر میں شادی تھی تو وہاں کے مسلمانوں نے کس طرح اس شادی کو اس طرح اپنائے جیسے استمن پنہ کورِ ہند خاندر کت کن ونوک، کت کن درائے برونٹ برونٹ۔ یہ کشیر، یہی کشمیر ہے میرے بھائیوں۔ کشمیر وہ نہیں ہے جو بندوق چلاتا ہے، کشمیر وہ نہیں ہے جو توڑ پھوڑ کرتا ہے، کشمیر جنت بے نظیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لازوال حسن دیا ہے، مگر اس سے بڑا سرمایہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ہر خطے کے لوگ، چاہے وہ جموں کا ہو۔ آج دیکھیے کچھ شر پسند عناصر وہاں بھی گئے، وہاں بھی انہوں نے کوشش کی ماحول کو بگاڑنے کی، مگر میں سلام کرتی ہوں وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے سرداروں کو، بالخصوص وہاں کے ہندو بھائیوں کو۔ انہوں نے امن کا دامن پکڑ کے رکھا، انہوں نے بھائی چارے کو توڑنے نہیں دیا۔ تو ایشا امیک انداز اگر خدا دی نجات یس یمن ناجائز ارادہ اوس کہ کشیر مز افراتفری تلت جیمس مز کرو کمیونل ٹینشن، تو پورے ملک میں کوئی مٹھی بھر ایسے لوگ ہیں جو اس کی آڑ میں رہتے ہیں، کب ان کو ملے موقع کمیونل ٹینشن کرے کا، ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانے کا، تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جب یہاں حالات خراب ہوئے 1990 کے بعد، پہلے تو امیر لوگوں نے اپنے بچوں کو باہر بھیجنا شروع کیا، مگر جب یہاں نظام تعلیم کا بالکل خراب ہو گیا تو غریبوں تک زمین، غریبوں تکن مکان، غریب ماجہ کن پنن سون، دوپن نہ میرے بچے کا مستقبل یہاں خراب ہو رہا ہے، میں اس کو کسی بھی ریاست ہندوستان کی ریاست میں بھیجنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ اور آج جب پچھلے کئی سالوں سے ہم حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالات ڈگر پہ آنے لگے، آج کیا ہوا؟ آج پھر ایک چھوٹا سا بچہ میرا لخت جگر وہ سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ملازم کو بولتا ہے تم کو ملازمت کے لیے نہیں جانا ہے، وہ بزرگ کا لحاظ نہیں کر پاتا کیونکہ بچہ ہے، اس کو کیا معلوم، وہ کسی عورت کا لحاظ نہیں کر پاتا، دباؤ چوز کوشی گشن، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ ابھی تو ہمیں اس کی توتلی باتیں اچھی لگتی ہیں، مگر خدا نہ خواستہ جب ہماری بچے ہماری نئی پوت سے ان کے ہاتھوں سے حیا کا دامن چھوٹ جائے گا، پت کیا روز یہ نہ حیا روز قومس مز پت کیا روز۔ اس لیے آج یہ جو حالات ہیں اس میں ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے۔ مفتی صاحب نے ہمیشہ مانا ہے، مفتی صاحب کرنے زہی دوہری کت نہیں، اس نے الگ الگ جھنڈے کبھی نہیں اٹھائے، سو یہ اوس یہ تم شروع کر سگو یہ میں دنیا تھی، مگر اس نے بات کی بولی نہیں بولی، مگر آخری وقت تک جب وہ ہسپتال کے بسترے پہ تھے، اگر ان کو کسی چیز کی تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ میں کام روز نامکمل، میں سا اس لکن سے وعدہ کرمت کہ یوتائیں بس زندہ چھس، میں چھن کرسی ضرورت، مگر بچھس کشیر ہندس مسلس حل کرنس مز یژھان اکھ وتھ بنن، اکھ وتھ دن۔ شاید اسی کے لیے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، ایک بی جے پی کی جماعت جن کو جموں میں مینڈیٹ ملا، جن کے لوگ نہیں چاہتے تھے وہ پی ڈی پی کے ساتھ جائے، کتھے کن بی جے پی سے، مگر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، آپ لوگوں کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے، جو آپ کے مسائل ہیں، اپنا مسئلہ دیکھتے ہوئے
बच्चों का मुस्तकबल देखते हुए उन्होंने ये हाथ मिलाया उस जमात से जिस जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हुई, इस ख्याल से, इस उम्मीद से कि जो काम अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में अधूरा रहा वो इस वक्त के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे, क्योंकि इसके बगैर कोई हल नहीं। बंदूकें चाहे मिलिटेंट्स की हो या हमारी हो, बंदूक से कोई मसला हल नहीं होगा। जैसे मुफ्ती साहब कहते थे, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से, इसके बगैर कोई हल। और हमने 2002 से लेके 2005 तक वो करके दिखाया। उसको जम्मू कश्मीर का सुनहरी मौका कहा जाता है। वो 3 साल क्या किया? लोगों को आराम दिया, सुकून दिया, और लोगों में ये उम्मीद जागी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद और उसकी जमात वाजपेयी जी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को एक इज्जत आबरू की जिंदगी देंगे, जिसमें पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात होंगे हमारे। मुफ्ती साहब ने बार बार कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोग बुरे नहीं हैं, इनका कसूर नहीं है, ना हमारा मुल्क हिंदुस्तान बुरा है। कहीं ना कहीं गलतियां जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, जिसमें वो अपने आप को भी गिनते थे, और हमारे मुल्क की लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक जो लीडर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, ये गलती उनकी है। अदरवाइज हम कहते हैं हमारे कश्मीर और मुल्क के अंदर भरोसे का फुकदान है। मैं इस बात को नहीं मानती। कमी है भरोसे में यहाँ के लोगों के बीच में और यहाँ के लीडर्स के बीच में, यहाँ के लोगों के बीच में और हमारे मुल्क के लीडर्स के बीच में। हमारे मुल्क के लोगों के साथ हमारी रियासत के लोगों का कोई झगड़ा नहीं हो सकता। अगर होता, अगर भरोसा नहीं होता, तो आज या इससे पहले यहाँ के लोग, जब यहाँ की जमीन हमारे लिए तंग हो गई, हमारे कारोबार करने वालों के लिए तंग होगी, खासकर हमारे बच्चों के लिए तंग होगी, तो इस तरह इस वादी कश्मीर के लोग अपने लख्ते जिगर यहां से उठा के इस मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में पढ़ाई के लिए नहीं भेजते। अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम उनको घर में रखते, कैद करते, मगर मुल्क के अंदर नहीं भेजते। इसका ये मतलब है कि जो मसला है वो यहाँ के लोगों और मुल्क के लोगों के बीच में नहीं है, वो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में नहीं है, वो यहाँ के लोगों के, यहाँ की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप के साथ हो सकता है। मुझे भी गिले हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इतने बड़े मुल्क के साथ मजहब को अलग रख के एक जमहूरियत को तरजीह दी, क्यों हमारी जमहूरियत इलेक्शन में वोट डालने तक महदूद रही? क्योंकि जमहूरियत का सबसे बड़ा हिस्सा बातचीत होता है, डायलॉग होता है। क्यों हमने इतने सारे मसले हल किए, हम यहां बातचीत को आगे बढ़ा के उसको किसी हल तक क्यों नहीं पहुंचा सके? क्या वजह है? हमारी चूक कहां हुई? कहां चूक हुई? क्यों हमारे इलेक्शन सिस्टम को कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2002 तक रुकना पड़ा? क्यों हमारे सिस्टम, यहां की लीडरशिप और उस वक्त दिल्ली की लीडरशिप ने 87 के इलेक्शन में यहां उन लोगों के हक पे शब खून मारा जो एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हलफदारी करना चाहते थे? इसमें तो जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर नहीं है। वो तो मुतबादिल ढूंढ रहे थे 87 में कांग्रेस और एनसी का, मगर नहीं होने दिया, जिसमें यहां के लोग लीडर और वहां के लीडर, आज सलाहुद्दीन उधर, यासीन मलिक इधर जेल में,
गिलानी साहब कहीं, तो जहां हमारी लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप की गलती की चूक की वजह से आज जम्मू कश्मीर में ये हालात हुए हैं, तो हम ही लोगों का, मुल्क की लीडरशिप का ये फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों को इस खून के दरिया से, इस आग के दरिया से बाहर निकाले, और बाइज्जत तरीके से, सफेद झंडा उठा के नहीं, बाइज्जत तरीके से। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं भी आपकी तरह, मैं कोई आसमान से नहीं आई, बहुत न आसमान पे ठीक है, मैं पाद फलमित जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी जंगलन पहाड़न मज प्रथ जाए वचस ये का ज्यादती गई। मे वनकस मे ईद सत मे मुश्किल पेसो आसान सत, मगर मेरी सिक्योरिटी वो जवान थे, वो बच्चे थे जो मेरे साथ साथ चलते थे, जिनको पता होता था गांव में मिलिटेंट हैं, मगर उसके बावजूद मेरे साथ चलते थे कि कहीं मिलिटेंट गोली ना चलाए। जो मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट थे, जो बच्चा तब छोटा था, परसों जवान हो गया और शायद वही उस बुलेट का शिकार हो गया, जो महबूबा मुफ्ती का नाम सुनते ही गांव में आता था मुझे देखने के लिए। मैं जिस तरह आपको मुझसे तवक्कात है कि तोह मेनिश तवक्कात, अस कोड़ ये के दिलन मज दहशत, ये तो खड़ा गसान ये सफेद जिप्सी आसान, मगर मुझे भी तवक्कात है आप लोगों से। मैंने बहुत मुश्किल हालात में इस रियासत का कलमदान संभाला। मेरे लिए वो तूफान था जब आते ही पहले हंदवारा, उसके बाद असेंबली में, आज तक मेरे ख्याल में किसी वजीर आला को पहले ही दिन अपने बाप की, अपने कायद की मातमी करारदाद पे बहस करनी पड़ी। मैंने सोचा था आप लोग मुझे मौका दोगे, आप मेरी मदद करोगे। हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को जो ख्वाब कि जम्मू कश्मीर कड़हन में ये मुसीबत मज, जम्मू कश्मीर बाइज्जत आक जिंदगी में उस ख्याल तो करी मदद, तो ये में वक्त असेंबली गए खत्म, गुड लोगों की असेंबली में ही बहाना ढूंढ रहे थे, कभी ये कॉलोनी बनेगी, कभी वो कॉलोनी बनेगी। हमने बार बार कहा कोई कॉलोनी ना, बिकॉज बहाना था, ढूंढ रहे थे कौन सा मौका मिलेगा, क्योंकि जब भी कश्मीर में अमन होता है, टूरिज्म होता है, लोग कारोबार करना चाहते हैं, क्योंकि 2014 के सैलाब से अभी हम उभरे भी नहीं थे। यहाँ के लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी लाजवाब भी पटाने, दुकानदार हो, कारोबारी हो या जिसका घर टूट गया, सरकार ने भी कोशिश की जो सैलाब में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बर्बाद हुई, इसको ठीक करे। सबसे बड़ी चैलेंज हमारे लिए कि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा ऐसी बारिश हो तो क्या हम ड्रेजिंग कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कौन से नालों में करनी चाहिए, बंद कहाँ बनाने चाहिए। अभी ये शुरू ही हुआ था, टूरिस्ट की तादाद लातादाद थी। लोग सोचते थे 2014 में सैलाब आया, 2015 में ज्यादा टूरिस्ट नहीं आया, मगर आज आ रहे हैं, कुछ कमाई करेंगे, मगर जुथई बहार आओ, युथई मन बासो, कशीर मजतुन अमन गसुन, खबर ये सरकार बने, ये मिस एजेंडा ऑफ अलायंस मज डायलॉग छु, जम्मू कश्मीर बातचीत जरिए मसला अंजरावन छु, खबर महबूबा मुफ्ती तम सरकार में कर किया। क्योंकि असेंबली खत्म होते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया, मैंने इनको कहा 2008-2009 से लेके आज तक तमाम केस देखो, जहां हमारे नौजवान जो 2008 में बच्चा था आज कॉलेज में पढ़ता होगा, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हैं थानों में, उनको विड्रॉ करने का अमल शुरू करो। पहले 2008 से लेके 2010 तक
پھر 2010 سے لے کے 12 تک، پھر 12 سے لے کے 14 تک، پھر 14 سے لے کے 16 تک. یہ شروع کیا میں نے آپ کے بتائے بغیر. یہ اچھا نہیں لگا ان کو. انکاؤنٹر پہلے بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہوں گے اور کل بھی ہوں گے. یہ مجبوری ہے. کل جس ملیٹنٹ نے چانسر کلگام میں گولی چلا کے ایک پولیس اور ایک سویلین کو مار دیا، کیا کریں گے اس کے خلاف؟ آپ اس کو بولیں گے مارو؟ بچہ سکول جائے اس کو مار دو، عورت گھر سے نکلی اس کو مار دو، دکاندار دکان کھولے اس کو مار دو، یا اس کا مقابلہ کریں گے؟ انکاؤنٹر تو ہوئے ہیں، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ قصور کیا ہے ہمارا. مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ ہمارا قصور، میری سرکار کا کیا قصور تھا. کیا یہ پہلی بار انکاؤنٹر ہوا؟ میری کوشش تھی ہمیشہ میری یہ کوشش تھی کہ یہ جو بچے ہیں جو 2008 2009 یا 2010 یا اس کے بعد زیادتی کی وجہ سے پڑھ لکھ کے بندوق اٹھانے میں مجبور ہو گئے ہیں، ان کو کسی طریقے سے ہم اپنے گھروں میں واپس لائیں. اور شاید میں نے کوشش بھی کی ہو، جس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. میری کوشش تو یہی ہے، جو ہمارے اپنے بچے ہیں، اگر باہر کا ملیٹنٹ آئے اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہو، مگر میری کوشش ہے کہ ہمارے بچے بندوق نہ اٹھائیں. جنہوں نے اٹھائی ہے وہ چھوڑ دے. مجھے وقت دے، میری سرکار کو وقت دے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ محبوبہ مفتی بھی جس طرح 2008 میں حالات خراب ہو گئے، دلی سے پالیٹیشین آئے، لیڈرشپ آئی بات گئی بات، کچھ نہیں ہوا. 2010 میں بھی حالات خراب ہوئے، بہت آل پارٹی ڈیلیگیشن آیا، بہت کچھ ہوا، مگر لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا. یہی بات میں نے پچھلی بار کہی تھی، جس کے معنی الگ الگ نکالنا کیے اس لوگوں نے. میں نے کہا جو 2008 2010 میں ہوا، اگر اس کا کچھ نہ کچھ علاج ہوا ہوتا مرکزی سرکار کی طرف سے، تو شاید آج اس قسم کے حالات نہیں ہو جاتے. اسی لیے میں نے کہا جو اس بار حالات ہوئے جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، جہاں جمہوریت میں لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ احتجاج کرے، مگر وہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے. اگر اس میں آپ تشدد، پیٹرول بم اور کبھی کبھی گرنیڈ بھی چلائیں گے تو اس سے سب لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اور بحیثیت وزیر اعلیٰ میری یہ بھی ذمہ داری ہے میرے سرکار کی کہ جہاں میں پورا احتیاط برتوں کہ ایسے احتجاج جو تشدد میں تبدیل ہوتے ہیں، اس کے باوجود پولیس اور سیکورٹی فورسز زیادہ سے زیادہ صبر و تحمل سے کام لے. وہی میری یہ بھی ذمہ داری ہے جو لوگ اس سے باہر ہیں، جو ان احتجاجوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جو اس ڈر اور خوف سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ان کے مال و جان کی حفاظت کرنا بھی میری ہی سرکار کا کام ہے. اور یہ فرض انجام دیتے دیتے کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں گولی چلی، کہیں پیلٹ گن چلا، جس میں ہمارے بچے، ہمارے جوان جاں بحق ہوئے، زخمی ہوئے. جتنے شہری زخمی ہوئے اتنے پولیس کے لوگ بھی زخمی ہوئے، اتنے سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی زخمی ہوئے، جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کس حد تک پولیس نے، سیکورٹی فورسز نے کوشش کی ہوگی کہ کوئی کیجویلٹی نہ ہو. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ کہیں غلطی نہیں ہوئی ہو. جہاں غلطی ہوئی ہوگی، میں فرضی باتیں ٹیمپریری طور پہ کوئی بات نہیں کہتی کہ یہ ہے تائیں بہناؤ، ہے فلانی ایس پی کروں سسپینڈ، ہے فلانی بیان دے تھوڑا سا گسی بیون. نہیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جہاں مجھے لگے گا کہ میرے ڈائریکشنز کے خلاف کہیں بھی زیادتی ہوئی ہے،
चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हो, हम उसका हिसाब लेंगे और आपको बताएंगे, कोई बात छुप के नहीं करेंगे। ये आपको इत्मीनान होना चाहिए, मगर साथ ही आपको ये भी एहसास करना चाहिए कि आज वो वक्त आ गया है। एक वक्त ये था जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की, पहले 5-8 साल में लोग घर से बाहर आने से डरते थे, जवानों को जाने नहीं देते थे। अगर जवान कॉलेज गसा शाम ताई दबाई गुस वापस। लोग पुलिस से डरते थे, आर्मी से डरते थे, सीआरपीएफ से डरते थे। आज वही लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है घर से निकलने से, क्योंकि रास्ते की गली में बच्चों की टोली खड़ी है। तलाश खुदा सिंह खतर सोजक ना उतोस पुलिस वोल ये कह रहा है मन लार मेशु बच्चे बीमार बन निमान सो अस्पताल, मेशु मालिस दूध तमिस दवा दिन तमिस कीमोथेरेपी त्रावन। ये मनता में ये कौस लड़ाई जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता। ये तो बड़ों का काम है मसले हल करवाना, बच्चों का काम है स्कूल में पढ़ना लिखना। उन बच्चों की तरह जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में सीईटी, एनईटी, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के इम्तिहानों के लिए आए। मैं वुश्ती माजे पैदल द्राम से गए। क्या वो आर्मी वाले से डरती थी? क्या वो पुलिस वाले से डरती थी? क्या वो सीआरपी से डरती थी? नहीं, वो डरती थी कि गली कूचे में जिन लोगों ने इन हमारे बच्चों को उकसाया है, ये बच्चे मेरी बेइज्जती ना करें। ये लिहाज बच्चे अकिस लेडी इस तमिस माज बराबर वनान छु आसा दपान छु कोत छक द्रामच पलव लगित, असल पलव लगित कोत छक द्रामच। तो सोचिए, मगर दाद देना चाहती हूं मैं उन बच्चों की जिसमें आज अनंतनाग की बच्ची ने टॉप किया सीईटी, इतने मुश्किल हालात के बावजूद। तो हमारा बच्चों का काम ये है, क्या घरस मंशा इस लक्टिस बच्चस पर बड़ काम त्रावा। अगर घरस मंज का गोब चीज तुलन, क्या हम बच्चों को बोलते हैं ये उठा? क्या बच्चों को बोलते हैं हम खेत में काम करो? नहीं। क्या हम बच्चों को बोलते हैं आप जाओ कमा के लाओ? नहीं, क्योंकि ये काम बच्चों का नहीं है। बड़े के बड़े काम बड़े लोगों को करने चाहिए और छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई। आज मैं क्या करूं? इतने आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज 5, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैं इनका क्या करूं? जब जिन बच्चों को इसमें पढ़ना है वो बच्चे अंधे हो गए, किसका कसूर है ये? वो माँ बाप कहां हैं जो अपने बच्चों को ये ले तूफान छिवा रूद पेवा मोच थवा इस बच्चस कलस पे पनी सड़ एमिस गुसुम कलस रूद वसुन एमिस गुसुम ताप लगुन। आज कते स मोज ये मिमन बच्चन कर्फ्यूस मज जलूसन तो जलसन मज दुत ब्रोट रोज न बसस आर्मी सित लड़ान तम साथ, पुलिस सित लड़ान तम साथ, यम साथ ये कुनी गामस मज क्रैक डाउन करने गछन। पता इस तत के लुकन दपा तो पकियो आसि ब्रोट ब्रोट यथ मकानस मज मिलिटेंट लुक इस दपा खोचन अगर अत मिलिटेंट अगर सु गूल चलाए अस मरो। मैंने उसके खिलाफ लड़ा है कि यहाँ के लोगों को शील्ड मत बनाओ, मगर आज मुझे अफसोस है जो लोग जम्मू कश्मीर का अमन बिगाड़ना चाहते हैं, जिनका सिर्फ मकसद एक है कि जम्मू कश्मीर आग की भट्टी में जलता रहे, उन्होंने इन बच्चों को अपने नाजायज मकासद के लिए वही शील्ड बनाया, इनको आगे किया ये सोच के कि बच्चे आगे हैं, हम पत्थर मारेंगे, हम पेट्रोल बम मारेंगे, हम ग्रेनेड मारेंगे। मगर चूंकि बच्चे हैं, आगे वाला पुलिस वाला जो बाप है, सीआरपी वाला जिसके अपने बच्चे हैं, शायद उसका दिल दहल जाएगा गोली चलाने से पहले। मगर जब आपका दिल नहीं दहला इन बच्चों को अपने आगे करते हुए,
आपको तो कोई मजबूरी नहीं थी, मगर ये मुझे लगता है ये हमारे लिए सोचने की बात है। हमें वक्त दीजिए, ऐसे दिए वक्त, मैंने सरकार दिए वक्त। हमारी सरकार में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कमी नहीं है। सजाद गनी लोन साहब, एमसिन मुएल, तेमतु तुजवारिया तफसी, उसके बाद बंदूक का शिकार। हम तो यहां कोई अशर आसमानी वतवित किया, अश मेहनत करमज योतनस वात खतर, मगर पन घर बनाने खतर नहीं किया। बच्चे छोड़े हम लोगों ने भी। आज मेरी 2 बच्चियों में से एक भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उनको गिला है कि सानी माज दितना इस वक्त यम साथ इमसन जरूरत है। आपके बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको आपने पिछले 4 हफ्ते में आग की भट्टी में झोंक दिया बिना किसी मकसद के। ये केमी शुभासन कि हालात खराब गसने को मसलू हल नमतस में ये 30 हालात गए खराब, फिर कौन सा मसला हल हुआ? हजारों की तादाद में लोग मारे गए। मैंने जो मिलिटेंटों के घर वाले घर से भागे थे, जो दूसरी जमातों से लोग अपने घरों में नहीं रहते थे, अपने गांव छोड़ के गए थे, मैंने 2002 के बाद और उससे पहले और उसके बाद उनको अपने घरों में वापस बसाया। मैंने कहा मिलिटेंट की लड़ाई बंदूक और बंदूक के दरमियान है, उनके घर वालों का क्या कसूर है? किसी जमात का क्या कसूर है? मुझे भी आपसे उम्मीदें हैं। और कहते हैं मन लम यशकुरुन नास लम यशकुरुल्लाह, यानी युसने इंसान सुन शुक्र अदा करे सो क्या करे अल्लाह ताला सुन शुक्र। ब्याक ला इलाहा इल्लल्लाह अंतु सुब्हानका इंतु कुंतुम मिनज जालिमीन, यानी इंसान पन्निस पानस पे सारी को जालिम जुल्म करन। युस अस कोर पतमन अकिस रेतस मज पन बच्चे कर तिमन हवाले यमन पनुन बाजार अमे सि चलान। मे खुशी कि सन वजीर आजम, न सिर्फ सन वजीर आजम बल्कि सरसे पार्लियामेंट के दोई विषय ऐवानन मज चले ये कत बात जम्मू कश्मीर के हालातन पे। मे उम्मीद 2008-2010 की तरह ये नहीं होगा। इस बार वाकई जम्मू कश्मीर के जो सियासी, समाजी, इक्तिसादी मसाइल हैं उसका कोई हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी, बातचीत की जाएगी सबके साथ। और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो हाल ही में कहा कि वाजपेयी जी की पॉलिसी इंसानियत, जमहूरियत, उसी के जरिए हल ढूंढना है। और इतना ही नहीं, उन्होंने वाजपेयी जी के नक्श कदम पे चलते हुए जो वाजपेयी जी ने लाहौर बस ली थी पिछले दिसंबर, नरेंद्र मोदी जी चले गए, मगर बदकिस्मती से उसके बाद पठानकोट। इतना ही नहीं, पिछले 1 महीने में इतने नामसाइद हालात होने के बावजूद, इतनी खराबी के बावजूद, इसके बावजूद जो पाकिस्तान में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने खुल के यहां इस तशद्दुद का सपोर्ट करने की बात की, मगर उसके बावजूद सार्क कॉन्फ्रेंस में जबकि तमाम सार्क मुल्कों ने कोई छोटा छोटा अपना बंदा भेजा, कुछ लोगों ने तो किसी को भी नहीं भेजा। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर यहां से चले गए। भाई हमारा तो माना जाता है मेहमान नवाजी। दपान इस्लामस मज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वनान अगर दुश्मन ती ही गर सो तो ये ठीक वो तमिस करी इज्जत। पाकिस्तान का मुल्क तो मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर यहां से गए, चाहे आपके कितने तजाद हो, कितने गिले हो, कितने शिकवे हो,
हर मजहब, चाहे वो हिंदू का हो, अतिथि देवो भव, चाहे हम इस्लाम जिसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत है कि मेहमान की खातिरदारी, मेहमान की इज्जत, मेहमान की बात सुनने की जरूरत है। मगर आपने देखा कोई जरूरत नहीं थी अगर होम मिनिस्टर नहीं जाते, मगर इस सुलगती आग में शायद उनके जाने का मकसद ये था कि वहां जाएंगे, अगर कुछ कड़वे लफ्ज वो बोले, कुछ हम बोले, शायद बीच में कोई रास्ता निकल आए, मगर ऐसा हुआ नहीं। मुझे हैरानगी है कि ये मौका पाकिस्तान ने अपने हाथ से क्यों जाने दिया, क्योंकि यहां इंसान मरते हैं, वो इंसान आसमान से नहीं आते, इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले होते हैं। जो सार्क मुल्कों का एजेंडा है वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक ये दो मुल्क आपस में इकट्ठा ना हो जाए, तभी तरक्की हो सकती है। चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मगर जब तक ये लोग आपस में हम और पाकिस्तान लड़ते रहेंगे कुछ नहीं होगा। मैं अपील करती हूं आज के दिन अपने मुल्क के लोगों से, तो मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ से जाते हैं हमारा कारोबार यहाँ ठप हो जाता है, पहुँच जाते हैं शॉल लेके, हमारी तालीम बंद हो जाती है, हमारे मुल्क के कॉलेजेस के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसमें गरीब बच्चों के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप में इस साल हज़ारों की तादाद में 1500 तो सिर्फ इंजीनियरिंग में चले गए। हमें अपने मुल्क के लोगों से कोई गिला नहीं है, मगर मैं अपने मुल्क की लीडरशिप से भी अपील करना चाहती हूँ और साथ ही पाकिस्तान की लीडरशिप से भी अपील करना चाहती हूँ कि बहुत खून बहा, अब हमारा जहलिम में इस खून को समाने की सकत नहीं है। आप दोनों इकट्ठे हो जाइए, आपके वहां भी बहुत मुश्किलात हैं, गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी, बेकारी है, हमारे यहां भी इसी किस्म के मामलात हैं। अगर आप वाकई जम्मू कश्मीर को प्यार करते हो, पसंद करते हो, तो ये कश्मीर और वो कश्मीर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हम बॉर्डर तब्दील नहीं कर सकते मगर बॉर्डरों को खत्म कर सकते हैं। क्यों ना मिलजुल के इन दोनों कश्मीरों के बॉर्डर्स को खत्म करके जम्मू कश्मीर जो था किसी भी मुल्क की सालमियत को जख्म पहुंचाए बगैर सार्क कॉरपोरेशन का जम्मू कश्मीर को दोनों तरफ से तरक्की के लिहाज से, अमन के लिहाज से एक नमूना बनाए। सार्क यूनिवर्सिटी बनानी है, जम्मू कश्मीर में बनाइए। सार्क हैंडीक्राफ्ट सेंटर बनाना है, जम्मू कश्मीर में बनाइए। नेपाल को कुछ बनाना है, बोलिए यहां बनाए। श्रीलंका को कुछ बनाना है, बोलिए यहां बनाइए। आपकी सार्क मुल्कों की करेंसी कौन सी होनी चाहिए, यहां से शुरू करें। फ्री ट्रेड करें, इसको फ्री जोन बनाएं, हमारे रास्ते खोलें। मानसरोवर का रास्ता ले मानसरोवर का खोलिए, करगिल अस्करदू खोलिए, सुचीतगढ़ जम्मू खोलिए, अस्तूर खोलिए, यहां से बाडीपुर अस्तूर। हम तो आपके हैं, जमीन तो यही है, मगर लोगों की आवाजावी हो, वो भी अमन से रहे, हम भी अमन से रहे, इज्जत से रहे, बातचीत करो। ये इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है इसका, और क्या चारा है। इसलिए मैं आप सब से, जो मुझे पता है बहुत मुश्किल हालात में आप यहां आए, और मैंने पहले भी कहा पुलिस वाले का डर नहीं है, आर्मी वाले का डर नहीं है, डर अपने लोगों से है। आप देख रहे हो दुनिया में इस डर की वजह से, दहशत की वजह से जमीन तंग हो गई। स्कूल मलाला यूसुफ पाकिस्तान बलूचिस्तान से उसको पढ़ाई के लिए न सिर्फ गोली खानी पड़ी बल्कि लंदन में पढ़ रही है। क्या आप चाहते हो
हमारी बच्चियां वो भी इसी का शिकार हो जाए। हमारा स्कूल कोई खोलता है तो चंद छोटे छोटे बच्चे स्कूल बंद करवाते हैं। हमारे पुलिस वाले जो पिछले 1 महीने से इसी तरह खड़े हैं, मैंने पहले भी कहा अगर किसी ने गलती की होगी मैं उसका इंसाफ करूंगी, मगर मैंने पुलिस के बाजू खून से लथपथ देखे हैं, पत्थरों से। ये भी तो आपके ये कहीं के बाहर से आए हैं। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग बिहार, कर्नाटक, पता नहीं कहां से आते हैं, इनका क्या काम है यहां पर? इनके बच्चे रोजी रोटी के लिए यहां आते हैं। यहां माहौल खराब होता है, ना चाहते हुए भी ऐसे हालात बनते हैं जहां कभी कभी इतना खराब माहौल होता है कि हमारा दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है कि मैंने पहले भी कहा कि मैं जो इस हालात में हमारा मानव जाल का नुकसान हुआ है, आपको याद है 2004 में हमारी पार्टी के लोग उड़ी गए और 14 हमारे लोग उसमें जाम बहक हुए, और 2015 अप्रैल में मुजफ्फराबाद रोड खोला। वो वही है जहां मुफ्ती साहब ने छोड़ा वही है। मगर इसी तरह से मैं आज कहती हूं 2008 में बहुत नुकसान हुआ, 2010 में बहुत नुकसान हुआ, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मगर आज जो हमारा नुकसान हुआ, किसकी गलती है किसकी नहीं, ये आप सब लोग बखूबी जानते हैं। ये आप लोग जानते हैं जो बार बार कॉलोनी के नाम पे, किसी और के नाम पे हड़ताल करो, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूं कि जब तक हमारी सरकार, जब तक महबूबा मुफ्ती और उसकी जमात और उसके सहयोगी और सजाद गनी लोन हम यहां इस जमीन पे इस सरकार में है, जो हमारी पोजीशन है 370 खुसूसी पोजीशन। पहले अल्लाह ताला ने हमें खुसूसी हुस्न दिया, फिर हम लोगों को खुसूसी बनाया, जिसकी मिसाल वुयन की शादी है। कैसे इतने तूफान में वहां हमारे मुसलमान भाई गए। उस खुसूसी पोजीशन की जिम्मेवार अल्लाह ताला के बाद हम लोग हैं। इसलिए कोई भी शख्स अगर आपको वर्गलाता है, ये कॉलोनी बन रही है, वो कॉलोनी बन रही है, 370 को कमजोर किया जा रहा है, खुदा के लिए इन बातों में मत आइए। उनका मकसद कुछ और होता है। उनका मकसद होता है जब यहां कारोबार चले, टूरिज्म चले, तो कोई ना कोई आग लगानी होती है। इसलिए मैं क्या बताऊं आपको हमने क्या क्या सोचा था। हमने टूरिज्म के हवाले से, बेरोजगार नौजवानों के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से, अस्पतालों के हवाले से, एम्स के हवाले से क्या क्या सोच रहे थे हम। पर मुझे क्या मालूम था असेंबली के बाद दूसरी ईद का भी इंतजार नहीं करेंगे, तीसरी ईद से सारी तैयारी कर रखी होगी इन्होंने, मौके की उसमें थे। तो इसलिए मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूं कि मैं इस जगह पे इसलिए हूं कि हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बार बार मुझे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सफर किया है महबूबा, ईमान कर खदमत, ईमान करियो दादन दवा क्या बीमार छन लाए लाज आसे, मगर बीमारी का पता लगना चाहिए और इंसान का एक सी कथ पे आसो। इसलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूं कि मुझे इस वक्त अमन बहाल करने में, बच्चों की जानें बचाने में, यहां के मां बहन बेटी जो घर से बाहर नहीं आ पाती डर की वजह से, उसका वो डर दूर करने में, यहां के स्कूल इकरा कुरान शरीफ का पहला लफ्ज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाहिर हुआ, इकरा यानी पढ़ो, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा, यानी तालीम पढ़ो, आज लोग तालीम खश करो। शायद ये जो लोग हैं, ये जो गलियों में जो ये पैसा बांटते फिरते हैं, मैं बड़े लोगों की, बड़े सियासतदानों की बात नहीं करूंगी,
میں جو علیحدگی کی پسند ہے ان کی بات نہیں کروں گی، مگر میں ان بچیلیوں کی بات کروں گی جو اس آگ میں گھی کا کام کریں صرف اس لیے کہ ان کے لیے کاروبار ہے۔ ان کے بچے جا کے دیکھیے، چاہے وہ ملازم ہو کوئی جو اس وقت اس میں الجھا ہو، وہ آپ اس کا بچہ دیکھیے۔ حالانکہ اس وقت اس مشکل حالات میں ڈاکٹروں نے، نرسز نے، ایمبولنس ڈرائیوروں نے کتنا کام کیا، کتنی جانیں بچائیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جن کی میں شکر گزار ہوں۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ اتنے خراب حالات ہونے کے باوجود، کرفیو ہونے کے باوجود، ہڑتال کے باوجود گاؤں گاؤں انہوں نے راشن پہنچایا۔ بجلی، میں نے ماہ رمضان میں جموں میں کوشش کی، گرمی میں وہاں بجلی رہے، یہاں ماہ رمضان کے مہینے میں میری کوشش تھی کہ آپ لوگوں کی بجلی نہ جائے۔ اس اتنے خراب حالات میں بجلی، پانی، جو ہم سے ہو سکتا ہم نے کر لیا۔ ایگزام، سی ٹی، این ای ٹی، پرائم منسٹر اسکالرشپ، اتنے مشکلات حالات کے باوجود انتظامیہ نے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کس طرح وہ امتحان کیے۔ آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے جب اننت ناگ کی اس بچی نے ٹاپ کیا۔ میرے پاس میں اس اوترا مزاح لڑکی، اس کی ماں آنگن واڑی ورکر ہے، باپ کانسٹیبل ہے، وہ اتنی لائق ہے، لندن کے ایک بہت بڑے اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ اتنے قابل ہیں ہمارے بچے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری سرکار کو وقت دو۔ اس دیو وقت، اس دیو ٹائم، میرے جو خبردار کا مسئلہ گژھِ بندوق سۭتۍ حل، کا مسئلہ گژھِ حالات خراب کرنے سے حل، بلکہ اس سے سب سے زیادہ نقصان ہماری قوم کا ہوگا، ہماری ریاست کا ہوگا۔ میں آج اس یوم آزادی کے دن پہ جو بہت مشکل سے ملتی ہے، جس کی قیمت افغانستان کے لوگوں سے پوچھو، جس کی قیمت سیریا کے لوگوں سے پوچھو، جو آزاد ہونے کے باوجود بھی آج گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں، لیبیا کے لوگوں سے پوچھو جن کی آزادی ہے مگر طوفان ہے، تو اس آزادی کی قدر کرو۔ اختلافات ہیں، بات چیت سے حل کریں گے، مگر اپنی آزادی کو اگر باہر بارڈرز پہ ہمارے جوان اس ریاست کی رکشا کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، تو اس ریاست کے اندر یہاں کی پولیس، یہاں کی سی آر پی، یہاں کی سیکورٹی فورسز، آرمی سے زیادہ آپ کو اس ریاست کی امن، ترقی، خوشحالی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ باہر سے آ کے کوئی نہیں کر سکتا جو کام آپ کو کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہاں کے بچے، یہاں کے نوجوان، ان کی زندگی کو نہ صرف محفوظ بنانا ہے بلکہ روشن بنانا ہے۔ میں یہاں جو بھی ہمارے آج پریڈ میں آئے ہیں، کہیں بچے بھی میں نے دیکھے اور ہمارے لوگ بھی بڑے مشکلات حالات میں آئے ہیں، میں آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ اور یہاں جو ہم نے آج کوئی کلچرل پروگرام نہیں رکھا کہ جو حالات ہوئے جس میں ہمارے بچے کافی جاں بحق ہوئے، زخمی ہو گئے، پولیس کے بھی، سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی، شہری، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہاں آج کوئی اس قسم کا جشن نہیں منایا جائے گا جو ہم کر سکتے تھے۔ تو اس لیے میں آپ سب کو آج دوبارہ اپنی اس آزادی کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور امید کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ریاست کو محفوظ رکھے، ترقی دے۔ جموں کشمیر پائندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ یہ رکھو۔